سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں ڈاکٹر انعام صاحب کو اسٹیج پہ بلاؤں گا، وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ کرامت حسین صاحب کے اعزاز میں شاعریہ شعیب صاحب کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ معشوق علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ گریز بوگا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اس محفل میں، اس شاعریہ میں۔ اس کے بعد عابد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد شہزاد درویش چاند، جیسے مجھے نام لکھایا گیا ان کی پہچان شہزاد درویش چاند، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے شاعری کا مقصد ہمارے معزز مہمان الحاج کرامت حسین صاحب جو ہے ان کو ویلکم کہنا۔ وہ 3-4 دن سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کی ایئرپورٹ پہ بڑا والہانہ استقبال کیا گیا۔ بارسلونا مہمانوں کا شہر، اور مہمان نوازی یہاں پہ ایسی ہوتی ہے جیسے روز کی روٹی کھائی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارا یہاں کے بارسلونا کے لوگوں کا چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کوئی مزدور ہو، کوئی فن کا مظاہرہ کرتا ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی ٹیکنیشین ہو، یا کوئی اپنا مزدوری کر کے روزی کماتا ہو، سب کے دل ہمارے بہت بڑے۔ تو جب بھی کوئی محفل جو ہے سجائی جاتی ہے، جب بھی کسی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہر وہ آدمی جو اس شہر کا حصہ ہے حاجی صاحب وہ پیش ہوتا ہے۔ آپ کو امید کرتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہوگا۔ اور ہمارے بارسلونا کے لوگ جو ہیں ان کی زندہ دلی آپ سے جو ہے ملنا، اور ان کی تپاک اور جذبات آپ نے ان کا اندازہ بھی کر لیا گیا۔ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں پورا بارسلونا کو آج، کیونکہ آپ کے دیے ہوئے 2 نام آج یہاں پہ ہیرو ہیں۔ میں چودھری امان صاحب کا ذکر کروں گا، جہاں پہ آپ کی اولاد جو ہے اس نے 4 چاند لگائے ہوئے بارسلونا کو۔ کوئی بھی محفل ہو کا وہ سپورٹس سوشل کرنا، یا کسی شخصیت کو پروموٹ کرنا، یا کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، تو ہمیشہ یہ پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ تعریف جو ہے وقت، لوگ تعریف اس کی جاتی ہے، یہ وقت ایسا ہے بڑا سمجھ سوچ کا وقت ہے، بڑا انفارمیشن کا وقت ہے۔ ڈیجیٹل، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات آج کل پازیٹیو اور نیگیٹو کی تقسیم جانتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو علم ہے کون کام کر رہا ہے، کون جو ہے وہ صرف تصویریں کھنچوا کے تو سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے حاجی صاحب، اور آپ کی اولاد پہ فخر ہے۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا اسٹیج پہ لے کے، تو وہ کیمرہ کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ ڈاکٹر انعام صاحب آپ آئیں، اور شعیب وگ صاحب کی طرف سے آج کا جو عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور حاجی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاجی کرامت حسین مہر صاحب، اور ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کے بارے میں چند کلمات آپ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو ویلکم کہوں گا۔ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگوں سے کسی بھی جگہ کسی بھی محفل میں بہت عزت ملتی ہے، اور ہم لوگ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بزرگوں کا احترام بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں۔ ہمارے لیے دولت کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے نام کوئی چیز نہیں ہے، ہماری دولت ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہمیں دعا دیتے ہیں تو وہ دعا لگتی ہے۔ اس چیز کا مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہے، اور آپ سب نے بھی اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا۔ تو میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے الحاج کرامت صاحب کو میں یہاں پہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے بیچ میں موجود ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کیونکہ
ग्राउंड में से वास्ता नहीं कभी पड़ा, चोरी हमारे साथ की बात कर रहा हूँ। हमने खड़े होकर मैच देखा और 3-4 घंटे हम खड़े रहे, आखिर पे सुपर ओवर पे मैच चला गया। 2-3 दिन बाद मेरी थकावट का शिकार थे, मेरी थकावट का शिकार था। मैंने कहा गपशप हुई मैच के बारे में, कहते यार बड़ा मज़ा आया, करते करते बात चलती गई। मैंने कहा फलां लड़का जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। कहते हैं वो लड़का जो ग्राउंड की फलां जगह पे खड़ा था और उसने 2 बॉल पकड़े, 1 बॉल किया और 1 वाइड किया, 1 पे आउट किया, वो लड़की की बात कर रहे हैं। मैं इनकी मेमोरी पे हैरान रह गया। मैंने कहा चल ये जज बड़ा करते हैं, तो स्पेस कदम की नजर हर तरफ होती है। तो जो साहब ये जो एक बिजनेसमैन की निशानी होती है कि किसी चीज़ में कमी देखी तो उसको पूरा करना जो है ना वो अपने फर्स्ट समझता है। तो वेलकम नए आने वाले मेहमानों को। आप सब तो रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हम जो है चौधरी इकबाल साहब को दावत देंगे कि आज जो शेर जिद साहब की तरफ से इशाइये का एहतमाम किया गया अलहाज कराम हुसैन महर साहब के एजाज़ में, तो आपने कुछ कलमात आज की इशाइये के बारे में और इस पर्सनैलिटी के बारे में, महर फैमिली के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, भाइयों और कुछ बच्चों जाते हैं सबको। यकीनन ये पुरमसरत हैं और सबसे पहले शुक्रिया मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का, जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, जिसने भी इनवाइट किया, और उन सब से बढ़कर शोवेरी का भाई हैं, इनका अमाना साहब के साथ बहुत उनस वाला ताल्लुक़ है और उनमें भी बहुत ज़्यादा एहतराम का उनसे शामिल है। तो इनकी दावत पे आना यकीनन हमारे लिए फ़ख्र और खुशी का मौका है, मसरत का बायस है। इधर मेरे छोटे भाई इमरान साहब भी मौजूद हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप भी तशरीफ़ लाए। अगर बदरोना ना होगा तो शायद आप ना आते, तो मुझे नज़दीक है। तो हाजी साहब बुलाते खुद एक ऐसी शख्सियत है जिन पर अल्लाह पाक राज़ी है। बंदे का चेहरा देखें तो उसकी रूह का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर चेहरा इत्मीनान वाला है तो इसका मतलब यह है कि बंदे की रूह मुतमईन है। अगर बंदे का चेहरा कर्ज़ी का अमल हो तो यकीनन उसकी रूह जो है वो इत्मीनान में नहीं है। ये अल्लाह का एहसान है इन पर जिनको अल्लाह ने ऐसी औलाद अता की है, और इस औलाद पर जिनको अल्लाह ने ऐसे वालिदैन अता किए। और फिर वालिद साहब इनके साथ इनका मामला, वालिद साहब का एहतराम में शायद ही कोई बच्चा अपने वालिदैन का इतना एहतराम करता होगा जितने ये करते हैं। लेकिन तलक़ात ऐसे हैं जैसे दोस्तों वाले होते हैं, एहतराम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हर मामले पे गुफ्तगू करनी, एहतराम को मौजूद खातर रखकर हंसी मजाक करना, ये है ज़िंदगी का असल रुख, इंजॉय करना। और इस माहौल और मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत सारों को औलाद के होते हुए भी ऐसे दुख सहने पड़ते हैं जिस तरह औलाद नहीं है। मतलब यह कि औलाद कहा नहीं मानती, तो उसके पीछे भी कई अवामल हैं। जिनकी औलाद का कहा नहीं मानती, उनकी हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। अगर मेरी औलाद मेरा कहा ना माने, इसका मतलब मेरी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। मैंने एक अच्छा बाप बनकर उनकी परवरिश नहीं की है। तो अगर इस आलम में, इस उम्र में जब औलाद बच्चों वाली हो, तो फिर सोसाइटी में अल्लाह ने एक ऐसा मुकाम दिया हो, हर तरफ से खुशहाली हो, चाहने वाले लोग दोस्त मौजूद हों, फिर वो अगर हर चीज़ अपने वालिदैन से मंसूब करे, अपनी सारियाँ खुशियाँ, सारियाँ तरक्कियाँ वालिदैन की दुआओं के नाम मंसूब करे, तो यकीनन ये वालिद साहब के लिए भी बड़ी खुशी मुसरत की बात है। देखिए ना, कोई आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर है, तो अमेरिका का सदर बन जाए, लेकिन वो अपने वालिदैन के लिए उनका बच्चा है। तो अगर किसी बच्चे को अल्लाह ने किसी सोसाइटी में इज़्ज़त दी हो, तकरीम से देखा जाए, लोग चाहत से मिले, यकीनन ये वालिदैन के लिए फ़ख्र की बात है। और फिर भारत भी हाजी करामत साहब जैसे खुश दिल, खुश जान, खुश रहने वाले और खुश रखने वाले। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मतलब, क्योंकि अगर मैं बोलता चला गया तो फिर आप जो साथी पहले से इंतज़ार कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती होगी। आपका भी इस मोहब्बत पर और वालियाना इस्तक़बाल पर शुक्रिया, और जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये महफ़िल इंशाअल्लाह यादगार रहेगी। बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी इकबाल साहब को मौका दे दें। सबकी तरफ से काफ़ी टाइम हो गए, लेकिन हम आखिर में
चौधरी इमारत महर साहब को सुनना चाहेंगे और मैं दावत देता हूँ चौधरी इमारत महर साहब को प्लीज़ आज जो इशाइया जो है आपके दोस्त भाई शोएब विद साहब की तरफ से अलहाज करामत हुसैन साहब के इजाज़ में दिया गया आपकी फैमिली के इजाज़ में उसके बारे में दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें और कुछ कलमात प्लीज़ आप अपनी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्त भाई बुजुर्ग मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप सबका सारे दोस्तों का भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आज की महफिल को रौनक बख्शी और हम सब आपका इकबाल साहब गुलरेज भाई राजा साहब और ख़ास तौर पर इमरान भाई के बड़े कम नज़र आते हैं और अमून भी, तो आज यहाँ पे आप भी हैं तो बहुत शुक्रिया आपका भी कि टाइम निकाला और ख़ास तौर पे जितनी भी शोएब की जितनी भी टीम यहाँ पे मौजूद है आप सबका बेहद शुक्रिया क्योंकि बाज़ का जिक्र होता है बाज़ का पता चलता है कि शोएब के पास काम कर रहे हैं लेकिन वो पता नहीं चलता, बल्कि मैं इनसे मजाक कर रहा था कि आज सारे आ गए कहीं पीछे चोरी ना हो जाए, देखिएगा ये भी देखिएगा बानकार है। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक वो वहाँ पे मेरे बड़े भाई बैठे हैं चौधरी आबद मैं, वो भी कहीं जाते तो है नहीं, आज बड़ी मुश्किल से उन्हें भी शाप से निकाला और इधर आ जाए आप भी। और मेरे मामू यहाँ पे बैठे हैं, ये नॉर्वे से आए, बहुत शुक्रिया क्योंकि इन्होंने भी वापस जाना था, इनको भी हमने रोक लिया, वो भी आप साहब की मेहरबानी के रिक्वेस्ट करवा के 2-4 दिन और कि ठहर जाए आप यहाँ पे और स्पेशली संडे के लिए कि आप जो हमारा फाइनल है वो ज़रूर देखें। और मलिक साहब बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह फाइनल विन भी होगा और इंशाल्लाह हम भी, लेकिन चलें जो भी हो लेकिन गेम अच्छी हो, लोगों को अच्छा एक जो मैच है वो देखने को मिले। और यहाँ पे मेरे कज़न बैठे हैं जर्मनी से, ये भी आए वालिद साहब को मिलने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी दोस्तों ने यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत दिया जिस दिन के यहाँ पे हैं उनको वो प्यार मोहब्बत कभी भूल नहीं सकते, इतना यानी कि वो, बल्कि मैं क्योंकि मेरा तो आप सबसे तल्लक है, रोज़ का तल्लक है, भाइयों वाला एक तल्लक है, तो वालिद साहब ने भी ये नोट किया एयरपोर्ट से लेके आज तक, तो रास्ते में भी यही कह रहे थे, कहते मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि आपके जितने भाई हैं, क्योंकि बात का पता चलता है कि बंदा कोई मजबूरी में आया हुआ है या किसी वजह से आपने इन्वाइट किया तो वो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर बंदा जो आपकी मोहब्बत है वो हर बंदे से सच्ची है और इसी तरह हर एक बंदे की आपसे मोहब्बत सच्ची है। तो बेशक, और आज शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह जो आपने मुझसे प्यार मोहब्बत किया आज आपका बनता था क्योंकि आपके बड़े महर जी आए हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने यहाँ पे सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने स्टाफ को इकट्ठा किया, भाइयों को, क्योंकि जब आपस में बैठते हैं और जो रौनक या खुशी मैं आपके साथियों के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ वर्कर के साथ मेरा एक ऐसा तल्लक है, मैं कभी भी आज तक मैंने अगर किसी भी वर्कर का तारफ़ करवाया तो कभी नहीं कहा कि ये मेरे लिए काम करता है, मैं कहता हूँ कि हमारे साथ काम करता है, क्योंकि इनके बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है। अगर वर्कर हैं तो हम भी हैं, अगर ये नहीं है तो मालिक भी नहीं है। तो बहरहाल मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया, बड़े प्यारे अल्फाज और बड़े मीठे अल्फाज में आपने जिस तरह गुफ्तगू की हमेशा करते हैं बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे अंदाज में, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और ख़ास तौर पे सारे दोस्तों का, भाइयों का जिन्होंने पहले दिन से आज तक प्यार मोहब्बत किया और आप सबकी प्यार मोहब्बत का। और क्रिकेट की जो आप बात कर रहे हैं, क्रिकेट का मुझे जुनून है और मेरी ज़िंदगी का एक जो है ना वो असूल भी है कि मैं या कोई काम करता ही नहीं, तो जो करता हूँ तो फिर उसे इतने दिल से करता हूँ कि रात को सोते हुए भी उसके ख्वाब देखता हूँ। और अल्लाह करे संडे तक ये CPL और फाइनल हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं हूँ रात को सोते हुए भी आपके प्लेयर इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका गोंदल साहब, आपका हमेशा आपने बड़े अच्छे अंदाज में रौनक लगाई यहाँ पे सारे लोगों का, दोस्तों का, और स्पेशली इनका इसलिए भी क्रिकेट के हवाले से कि ये क्रिकेट में जो है वो प्लेयरों को बड़ा रियायत भी देते हैं और उनसे
बड़े मुनासिब कीमत उनके हिसाब से, और बड़ा ये भी बड़ा जुनून है इनको क्रिकेट की टीम को, और बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। तो आपका भी बेहद शुक्रिया क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, दोस्तों को, कम्युनिटी को। तो इकबाल साहब आपका हमेशा बड़े भाई बुजुर्गों की तरह आपने प्यार किया, आप साहब आपका, तो बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का, थैंक यू।